I welcome everyone to the third day of the Community Outreach Training Program. And this is the final day, so we have very successful 2 days of the training program. Thanks to our experts, Shri Aditya Singh sir from NDRF and Nishamat sir as well. And today we have our expert, Mr. Manish Kumar. He is a senior environmental health and safety consultant and has been associated with IDEA for a long time. He holds a professional experience of more than 12 years, including several fields, including fire and safety consultancy, building audit, and fire rescue skills. Sir, I welcome you for today's training program. So we'll have a very brief recapitulation of what we did on the first day and the second day. So so that you also get an idea and the participants also have a recapitulation of whatever content we have covered. So the first day was mainly on the fire rescuing skills. We have some live demonstrations by from NDRF sites. And the second day we had a more of a basic first aid as a savior, the role of a savior for communities. So these are the two things that we have covered. And Himani have created a assessment link both for yesterday and both for today. So we are also circulating that link to the participants so that we can have an assessment how the attendees are grasping all the things. So I'm just sharing the link right now, and I will request Himani to just explain how to do assess and use that form. Thank you, Ms. Mohana. Himani, over to you. Thank you. Thank you, Ms. Mohana. On behalf of Team IDEA, Himani Tiwari, once again welcome you all to this third and the last day of the community outreach training. You all know that today the main focus is on teaching you the basic fighting skills. Fighting skills in the sense in the case of an emergency or a disasters. But before we move further, just like yesterday, an assessment test was circulated specifically focused on the training content of rescuer that you learned on the first day. Similarly, we are doing an assessment test for savior, the skills or the training skills that you learned yesterday from yesterday's session. So I request you all, before you move forward to listen to this presentation, kindly just fill all the questions in order to check your knowledge and facilitate your understanding. Thank you, Ms. Mohana. Over to you. Thank you. And I think we should not wait further. And without further ado, I would ask Mr. Manish sir. So please, sir, continue with your. So good afternoon, everyone. So this is the third day of the ongoing session on the three different areas of dealing with emergency. One is rescue. Today is fighter. So in fighters, various aspects of firefighting and how to deal with different emergency situation which can be faced by any individual of this country or at any place, because emergency will not change much with different places. So let's start the session. Before session, to ask some questions. Are you comfortable in English, or I should be in English in the mix? You can just send your comments so that if you are able to understand Hindi, I'll also include Hindi in my session. So if somebody is not able to understand Hindi, you can ping me. Mix is fine. Okay. Yes, sir. I think the mix would be fine. Okay. So this is the agenda for today's. Like बहुत सारे aspect हम इसमें fire safety, fire fighting के cover करेंगे, जिसमें we will be looking into basic concepts of firefighting, different types of fire, relevance of fire triangle, how to deal with different emergency situation at home. तो वो सारे फायर के एस्पेक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं. देन कुछ अर्थक्वेक रिलेटेड इमरजेंसी के एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, बिकॉज अर्थक्वेक इज आल्सो a potential emergency at most of the places in India according to different zonation. वो हम कवर करने वाले हैं इसमें. Then there are various first aid related aspects like localized emergency, जिसमें कि बर्न की जितनी टाइप्स हैं हम उसकी डिस्कशन करेंगे.
केमिकल बर्न्स में क्या करना है, अगर हीट हम इसमें कवर करने वाले हैं. देन वी विल टच अपॉन रोड एक्सीडेंट्स, व्हाट शुड बी द चेन ऑफ रिस्पॉन्स. देयर आर रिकमेंडेशंस फ्रॉम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. We shall be covering that. Then the last component will be electrical accidents. और इन सब के अलावा आपके पास जो क्वेरीज हैं, जो इमरजेंसी सिचुएशंस हम फेस करते हैं, उसको हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, इमीडिएट रिएक्शन क्या होना चाहिए. एंड रिएक्शन इज नॉट द राइट वर्ड, इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, बिकॉज रिएक्शन इज विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दो सिचुएशन. तो हमारा पर्पज इस सेशन का यही है कि आवर रिस्पॉन्स गेट्स परफेक्ट. और रियल इमरजेंसी में हमारे पास टाइम नहीं होगा तैयारी करने का. हमारे पास अभी टाइम है कि हम जितनी भी पोटेंशियल इमरजेंसीज को हम फेस कर सकते हैं उसकी तैयारी करें, चाहे वो फायर है, अर्थक्वेक है, केमिकल रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस पे और इवन बहुत सारे घरों में भी अलग अलग तरीके के केमिकल्स यूज होते हैं. And nowadays, because of COVID also, we are very much using this flammable chemical for sanitizing at different spaces and including our hands. So वो सारे एस्पेक्ट्स को हम कवर करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की सिचुएशन में हमें क्या करना है, क्योंकि इन सारी सिचुएशन में अगर हमारा रिस्पॉन्स परफेक्ट नहीं है तो इमरजेंसी की सीवियरिटी बढ़ सकती है. तो ये इस सेशन का फोकस है. आई होप एवरीवन वुड बी क्लियर विद द स्कोप ऑफ दिस सेशन. सो स्टार्ट करते हैं हम. हु इज फाइटर? आप अपने इनपुट्स चैट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं. आई विल बी लुकिंग इनटू योर रिस्पॉन्सेज बिकॉज आई वांट दिस सेशन टू बी इंटरेक्टिव. जो भी आपके पास इनपुट है, अपडेट है, जो आपके क्वेश्चन है, आप साथ साथ eye on questions and input which you will be sharing. Who is fighter? कौन है फाइटर? किसको बोलते हैं हम फाइटर? होते हैं तो बहुत सारी इमेजेस माइंड में आती हैं. सबसे पहले फायर फाइटर आ सकता है, फाइटर प्लेन आ सकता है, एंड देयर आर वेरियस medical professionals these days who are actually fighting with this COVID-19 disease, and we have full defense team who are fighting for us. So fighter is everyone. जितने भी लोग हैं इस कंट्री में या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सभी फाइटर हैं एक तरीके से. तो फाइटर का कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं. व्हाट इज एक्चुअली फाइटर? समवन हु फाइट्स इज ए फाइटर. एंड कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं होगा जो सर्वाइवल के लिए फाइट नहीं करता है. सो वी नीड टू फेस डिफरेंट सिचुएशन, वी नीड टू गेट आवरसेल्फ रेडी विद डिफरेंट सिचुएशन, चाहे वो नॉर्मल डेज हैं या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है. एंड दीज डेज एवरीवन इज फाइटिंग विद COVID-19, so everyone becomes fighter. Apart from COVID-19 also there are a lot of emergency situation जो हम रूटीन में फेस करते हैं. सो जितने लोग हैं सब फाइटर हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए. फाइटर की टर्म सुनते ही आपको फायर फाइटिंग पे फोकस नहीं करना है. सो एवरीवन इज फाइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन, एवरीवन इज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल. वी ऑल आर फाइटिंग इन करंट COVID-19 सिचुएशन. सो next questions come, are we ready to fight in all emergency possible with us? क्या हमें पता है कि हमारे साथ में कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है? हमने उसके लिए कोई तैयारी किया है? एनालिसिस, रिएक्ट नहीं करना है. इमरजेंसी सिचुएशन we shall be understanding various emergency situation और तो सबसे पहला एक एक्टिविटी मैं आपसे ये इनपुट चाहता हूँ. व्हाट टाइप ऑफ इमरजेंसी आर पॉसिबल फॉर अस एज ए कॉमन मैन? किस तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन हम फेस कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स चाहिए. You can put your responses in the chat box so that I am also clear that you are listening to me. To the participants, I have a request. Whenever you are just replying back, kindly either give it to Sir Manish sir
or select the option of to all the panelists, then only sir would be able to see. If you are sending it privately to me, then only I will be able to see. So please Okay. kindly So look into that Darshan ji is matter. responding road accidents. Okay. बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है और इमरजेंसी सिचुएशन इंडिविजुअल के साथ भी हो सकती है, कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकती है, सोसाइटी लेवल पे भी हो सकती है, एक बिल्डिंग स्पेसिफिक भी हो सकती है. देयर आर लॉट ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन पॉसिबल. अभी तक एक ही इमरजेंसी सिचुएशन आई है, रोड एक्सीडेंट, सेकंड इज बिल्डिंग कोलैप्स. ओके, जो भी आपके माइंड में आ रहा है किस तरीके की इमरजेंसी हम फेस कर सकते हैं. बिल्डिंग कोलैप्स इज द सेकंड वन. ओके, फ्लड, यस, कोस्टल एरियाज में फ्लड की पॉसिबिलिटीज हैं. Lightning strike, fire due to home appliances, yes, fire hazards are there. Medical emergencies, very right. There are multiple emergency situations possible. Choking, yes, specific to the specific type of food. हो सकती है choking की problem किसी वजह से. Heat stroke हो सकता है summers में. Yes. So these are some examples of medical emergency situation. Let's see. Fire is the most common one. Aniket is also saying earthquake, yes, possible, according to different zonations. Anu is also saying earthquake, personal accident, cyclone, flooding. There are a lot of emergency situations possible. Whatever we cannot cope is emergency. Yes, it can be, emergency can be specific to individuals. किसी एक के लिए emergency है लेकिन वो दूसरे के लिए emergency नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, because it depends upon the coping capacity of the individual. किस तरीके से हमारे पास resources हैं उसको manage करने के लिए. Animal bite is another emergency, बिना किसी प्लानिंग के अचानक से हो सकता है. इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक, ड्राउनिंग पॉसिबल है. आपने सेवियर वाले सेशन में इसको कवर किया होगा. साइक्लोन्स, फ्लड, रोड एक्सीडेंट्स, अर्थक्वेक. तो हम इन्हीं सारी इमरजेंसीज की अगर बात करें तो इन सब में कॉमन क्या है? mishaps, the planning of the exit plan. Okay. हाँ, so structural defects हो सकती हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं. Riots is another possible emergency situation. Okay, now we are getting response. तो इन सारी emergency situations में common क्या होता है? What is common elements in all these emergency situation? उसको अगर हम summarize करें तो in all these emergency situation every time there will be some surprise element. हम जितना मर्जी तैयारी कर लें emergency के लिए, लेकिन there will be some surprising element जो नहीं होगा क्या वाला है, इसीलिए इनका नाम इमरजेंसी है. इट विल ऑलवेज बी सडन, इमीडिएट होगा, बता के नहीं आएगी इमरजेंसी. कुछ हिंट मिल सकते हैं बट इट विल ऑन द स्पॉट. ऑन द स्पॉट कोई चीज होती है और बहुत सीरियस कोई सिचुएशन होती है तो हमारा माइंड उस टाइम पे, हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है. वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन इन दोज इमरजेंसी सिचुएशन. और इन्हीं सब इमरजेंसी सिचुएशन की तैयारी करने के लिए हमारे पास कब टाइम होता है? जब हम नॉर्मल फेज में हो. हम कोविड-19 की जो प्रिपरेशन है पहले कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग कोविड-19 जो कि हमारे लिए नया था, मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज एवरीवन इज अवेयर अबाउट कोविड-19 नाउ. lot of awareness campaigns has been done, so everyone is now aware about that. बट इसमें क्या है कि जब रियल में कोई इमरजेंसी आएगी उस टाइम पे आपके पास प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं है. टाइम हमारे पास कब होता है किसी भी इमरजेंसी की प्रिपरेशन करने के लिए? नॉर्मल फेज में जब हम होते हैं. सो वी शुड गेट रेडी टू फेस ऑल दीज इमरजेंसी सिचुएशंस. और उसको रेडी करने के लिए एज ए फाइटर हमें क्या करना है कि हम इमीडिएट डिसीजन ले सकें. फाइटर की एक सबसे बड़ी स्किल क्या होती है कि वो इमीडिएट डिसीजन लेता है. He is not that's why he is known as fighter. तो हमें अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. आर वी प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल दीज इमरजेंसी सिचुएशन? हम फायर की बात करते हैं इतनी सारी, हमने क्या तैयारी करी है अपने लेवल पे फायर करने के लिए कि अगर हमारे आसपास फायर हो जाता है
तो हम कितना कॉन्फिडेंट हैं कि उस फायर को वहीं की वहीं स्टॉप कर सकें, क्योंकि हमारे जो के अंदर रिसोर्सेज हैं इतने सफिशिएंट नहीं है हो जाए कि नहीं होगा तो कोई ना कोई आएगा और बुझा देगा। लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स इज very important these days in any kind of emergency situation. So we need to get ourselves ready as a conscious citizen of this country. हमें अपने आप को तैयार करना है और अपने आसपास की कम्युनिटी को भी तैयार करना है किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को फेस करने के लिए। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू लिसन फायर अलार्म? और सबसे पहला रिएक्शन या रिस्पॉन्स क्या होता है लोगों का? अरे वैसे ही बज रहा होगा, क्योंकि बहुत चलती है। एक तो ये रीजन है, बहुत बार भी एक रीजन है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ फायर इमरजेंसी। अगर हम किसी ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में हैं, जैसे किसी ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में, मार्केट के अंदर, तो हो सकता है आपको अलार्म सुनाई दे। अलार्म का मतलब क्या है? वी नीड टू इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट एग्जिट्स, अगर हम किसी पब्लिक स्पेस में हैं तो। और अगर हमारे आसपास हमें फायर दिख रहा है एंड इफ वी आर ट्रेन्ड इन डूइंग द फायर फाइटिंग यूजिंग द अवेलेबल इक्विपमेंट्स, तो हमें फायर फाइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जितना जल्दी हम एक्शन लेंगे उतना इमरजेंसी की सीवेरिटी जो है कम हो जाएगी। अगर हमने अपने एक्शन में और अपने रिस्पॉन्स में डिले किया तो हमारा जो इमरजेंसी की सीवेरिटी है वो बढ़ जाएगी। व्हाट वुड यू डू इन केस ऑफ केमिकल बर्न? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे नहीं आने चाहिए जब हमारे साथ रियल में इमरजेंसी हो। हमें उस टाइम पे माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि केमिकल बर्न होगा तो हमें करना क्या है। डू यू नो योर रोल इफ देयर इज एन अर्थक्वेक? बहुत सारे कंफ्यूजन्स अर्थक्वेक को लेके हैं पब्लिक में। कुछ लोग बोलते हैं अर्थक्वेक में इवैक्यूएट करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। तो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि अर्थक्वेक आएगा तो हमारा ये एक्शन होगा, हमें ये सारे स्टेप्स करने हैं। इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी की प्रिपरेशन। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू ए रोड एक्सीडेंट? आपने आसपास कोई रोड एक्सीडेंट देखा, क्या आप घबरा जाएंगे या उस टाइम पे कुछ सपोर्ट करेंगे उस पर्सन की, विक्टिम के जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है? या अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपको लग रहा है कि कुछ अनयूजुअल है, इन सारी एजेंसी से डिफरेंट है, उस टाइम पे आप क्या क्या एक्शन लेंगे? आपका माइंड इतना कॉन्फिडेंट और कूल माइंड होना चाहिए कि आप इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर पाओ। और वो ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी इन्हेंसमेंट ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं रियल इमरजेंसी को फेस करने। सो एज आई टेक डिसीजंस वेरी क्विकली इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो हम सभी को फाइटर बनना है, हम सभी को रेडी रहना है किसी भी इमरजेंसी को फेस करने के लिए। बहुत सारे जो आपके डाउट्स, जितने इमरजेंसीज हम डिस्कस करने वाले हैं, यू कैन आस्क ड्यूरिंग द सेशन सो दैट यू ऑल बिकम फाइटर। At least you are clear with the decisions which you need to take during emergency situation. फायर फाइटर की अगर हम बात करें, किसको हम बोलते हैं फायर फाइटर? एक इमेज माइंड में आती है कि पूरा यूनिफॉर्म डाला हुआ है, उसमें ऑक्सीजन और जो हमारा ब्रीदिंग एपरेटस होता है, फायर फाइटर बट और यही है कि टाइमली और छोटी की सिचुएशन में ही एक्शन लिया, दैट सिचुएशन विल नॉट या प्रोफेशनल्स को बुलाने की जरूरत। बहुत सारे फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, ये डेटा हमने लास्ट इश्यूज को हमें समझना, फायर फाइटिंग को समझना। डेली एक के अंदर जो 35 इंडियंस की डेथ हो जाती है, किसमें? सिर्फ फायर एक्सीडेंट्स में। और ये डेटा है हमारा जो 2020 में ही रिलीज हुआ है, 2018 का डेटा है एनसीआरबी का।
2018 there were 12,748 deaths simply because of, और इससे भी ज्यादा जो डेथ होते हैं वो रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं इंडिया के अंदर। 56% ऑफ ऑल दीज फायर्स आर इन रेजिडेंशियल और ड्वेलिंग्स। इसका मतलब ये है कि कमर्शियल और ऑफिस या इंडस्ट्रियल स्पेस के अलावा रेजिडेंशियल स्पेस में ज्यादा टेंडेंसी फायर एक्सीडेंट्स की और ज्यादा केसेस भी मिले हैं। 2018 का डेटा और 2019 में भी जो अपडेट है उसका भी यही अपडेट है कि रेजिडेंशियल्स में ज्यादा परसेंटेज है। वुमेन का अगर रेशियो देखें हम इन डेथ में से 12,748 में से देयर वर 7,244 females who got died just because of these fire accidents। और ये सारी जो डेथ हुई है इन सबको हम बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? अवेयरनेस से। वी नीड मास अवेयरनेस कैंपेन, और इस मास अवेयरनेस कैंपेन का ही इनिशिएटिव लिया है आइडिया ने एनआईडीएम के साथ मिलके, जिसको अचीव करना चाहते हैं कि हर एक इंडिविजुअल तक ये जो अवेयरनेस कैंपेन है पहुंचे। आपने अगर ये ट्रेनिंग को अटेंड किया है, ये सेशन में से कुछ आपको चीजें मिली हैं, यू शुड टेक इट अप विद योर फैमिली फर्स्ट, देन टेक इट अप विद द सोसाइटी। एक बहुत ही सीरियस इंसिडेंट, और मैं सीरियस क्यों बोल रहा हूँ, 8 दिसंबर 2019 को ये फायर का इंसिडेंट हुआ था। आपको इसका अपडेट होगा, बट स्टिल आई एम रिपीटिंग इफ समबडी इज नॉट अवेयर। 43 डेथ्स 8 दिसंबर 2019 को हुई थी दिल्ली अनाज मंडी के अंदर। और किस वजह से हुई थी? फायर की वजह से हुई थी। और फायर क्यों हुआ वहां पे? बहुत सारी फायर के इलेक्ट्रिकल रीजंस होते हैं। वहां पे भी फायर हुआ किसी रीजन से, लेकिन वहां पे एस्केप रूट्स क्लियर नहीं थे। जो लोग वहां पे थे उनको लॉक किया गया था, उनको पता ही नहीं था एक्सटिंग्विशर है, लेकिन चलाने कैसे हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन इस पे हुई। इवन फायर फाइटिंग टीम वहां से केवल 200 मीटर के डिस्टेंस पे थी। यहाँ पे और जितना नॉलेज इमरजेंसी के लिए वो सारा काम आता है। और ये बेसिक स्टार्ट करते हैं। फायर है क्या? हमने इंसिडेंट डिस्कशन किया। व्हाट इज फायर? डेफिनेशन आपके सामने है, बट जो भी आप इनपुट है आप आई एम लुकिंग इनटू द चैट। इसको अगर हमें करना है, डेफिनेशन बट होता है फायर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है। फायर इज अ रेप्रेजेंटेशन ऑफ a material in exothermic chemical process of combustion releasing heat, light and various reaction products। और reaction products में smoke कर सकते हैं। आप में से कोई भी सिंप्लीफाई इट? आई एम वेटिंग फॉर द चैट। आर यू देयर participants? Anyone wish to simplify this? You can send your response. Okay, I got one response from Yes, Neeraj. one response has come. Yeah, combination of heat, oxygen and Neeraj is very right. What are the three elements of fire? And fuel, process of combustion, correct? तो तीन एलिमेंट्स हालांकि अभी नीरज बताए हैं। कौन से एलिमेंट्स हैं ये? हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। इन तीनों में से अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, अनिल कुमार इज आल्सो सेइंग वेरी राइट, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। एंड फायर की जगह फ्यूल आएगा वहां पे। हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, दैट इज करेक्ट। या
सो इन ये 3 एलिमेंट में से अगर एक एलिमेंट भी मिसिंग है तो फायर नहीं होगा। अगर हम फ्यूल को हटा देंगे, फ्यूल इज समथिंग व्हिच कैन, कोई भी ऐसी चीज जो जल सकती है दैट विल एक्ट फ्यूल। सो अगर हम 3 एलिमेंट के लिए हमें फायर ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। क्या है ये फायर ट्रायंगल? इन तीनों के कॉम्बिनेशन को ही हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। जब ये सही अमाउंट में मिक्स हो जाते हैं, सही लेवल पे, सही अमाउंट में, सही टेम्परेचर, वो एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है जिसको हम फायर बोलते हैं। सो फायर ट्रायंगल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। और फायर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेसिक है और बहुत जरूरी है हमें समझना, क्योंकि जो फायर फाइटिंग होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, को हटा देंगे या फ्यूल को हटाएंगे वहां से, और उस मेथड्स हैं ऐसा फायर फाइटिंग which is related to this fire triangle. We will talk about those things. ठीक, वहां पे पानी डाल के या किसी तरीके का जस्ट रिमूव हीट, और या हम हटा दें वहां से फ्यूल सप्लाई, या फायर को होने के लिए ये 3 एलिमेंट चाहिए कम से कम। एक सही टेम्परेचर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन कितना चाहिए शुरुआत करने के लिए? मिनिमम 16.5% ऑक्सीजन चाहिए, और जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। एंड एलिमेंट को ऑक्सीजन को कर रहे हैं या ब्लैंकेटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेटिंग मेथड ऑफ फायर फाइटिंग। फायर को, आग को भूखा मारना, दीज आर सर्टेन। हम कुछ इसको बिकॉज अगर हमने इसको नहीं समझ हुए हैं कि फायर हुआ, उस पे फायर फाइटिंग करने की कोशिश करी, फॉर एग्जांपल अगर वहां इंटेंसिटी बढ़ है वहां पे फायर की, इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, इट इज डायरेक्शन, बिकॉज फायर की वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट्स, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज टू प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ बिजनेस। और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की या किसी कंपनी की बात करें तो इट ऑफ गुड विल ऑल्सो, पॉल्यूशन और मार्केट। देयर आर डिफरेंट टाइप। ज्यादा जो इम्पैक्ट करता है हमारा फायर के अंदर, वो हम बात करेंगे अभी, और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, सबसे ज्यादा लॉस किसकी वजह? लोकेशन पे फायर फायर विल बी वेरी स्मॉल, होते हैं। उसके बाद फायर स्टार्ट कैसे होती है और कैसे है जो करने वाला। यस,
एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जिसमें कि फायर को आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट किया गया है पर्पसफुली जस्ट एक्सपेरिमेंट बिगिनिंग स्टेज होती है। इस तरीके का ये रूम हमें फायर करने में कितना टाइम लगेगा आपके अकॉर्डिंग? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर दिस होल रूम इनटू? देख वीडियो बहुत इजी। हम स्टार्टिंग फेज में फायर को स्टेज से फ्री बर्निंग फेज में आ जाती है तो उस वन इज से का तो देखो ये फायर का स्टार्टिंग स्प्रेड हो जाएगी। अब फायर होल वहां फायर spread like in this room. Fire immediate fire has started capturing the. So you must have seen the sequence of this spreading of this fire कि कैसे ये beginning stage से फ्री बर्निंग स्टेज में और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में ये पहुंच जाती है। तो इसका वीडियो दिखाने का मेरा पर्पस था कि टेक इट आप कितने तो आपके पास हो सकता है और एक्सटिंग्विशिंग से आप बुझा सकते हो वो नहीं मिलेगी तो आप स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही इमीडिएट एक्शन लेना है। Steps before I say what should
क्या हमारा सबसे की सिचुएशन हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए कि जितना हम आसपास में या जो लोग अफेक्टेड हैं स्टिल रिस्पॉन्स सचिन दैट I try use headphone. होते हैं हमारे आसपास, अगर ऑर्गेनाइज्ड स्पेस की हम बात करते हैं और अगर हम अपने घर की बात करें तो जरूरी नहीं है वो सारे सिस्टम्स हो अनलेस अनटिल वी आर पार्ट ऑफ सम हाई राइज बिल्डिंग और एनी काइंड ऑफ सोसाइटी। तो डिपेंड करता है कि हम किस लोकेशन पे हैं, बट हमें पता होना चाहिए कि फायर से रिलेटेड जो सिस्टम्स लगाए गए हैं वो ऐसा नहीं है कि फायर फाइटर्स के लिए लगाए गए हैं। वी शुड नो द बेसिक्स ऑफ दोस। जैसे अगर हम बात करें मैनुअल कॉल पॉइंट्स की, हमें पता होना चाहिए कि मैनुअल कॉल पॉइंट्स का यूज MCP, I'll show the image of MCP also। कैसे हमें फायर एक्सटिंग्विशर को ट्राई टू शो डिफरेंट हाउ टू यूज एक्सटिंग्विशर्स, और उसको हम वीडियो के थ्रू भी देखेंगे। एग्जिट्स का हमें कैसे पता चलेगा अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्मोक हो चुका है, किसको हमें रिपोर्ट कम्युनिकेट करने के लिए, अगर हमें सपोर्ट है तो किस नंबर को डायल करेंगे। कैन यू टेल मी व्हाट इज द phone number or the which number we need to dial in case of fire? Hello. So it's breaking a bit. I checked network is okay. So we are getting response 101. Okay. ठीक है, 101 is, but nowadays there is one national emergency number. उसके बारे में आप में से कोई बता सकता है क्या? 108, no. 112 is correct. Yeah, Vishal is saying 112. So 112 is our national emergency number which जहाँ पे हम किसी भी तरीके की इमरजेंसी को रिपोर्ट कर सकते हैं, और अभी ये 22 स्टेट्स के अंदर एक्टिवेट है इस टाइम पे। सो जस्ट चेक योर स्टेट, और ये तैयारी हमें पहले से ही करनी है, और जरूरी नहीं है कि हमें 112 या फिर 101 पे ही डिपेंड रहना है। अगर आपकी लोकेशन जो है, चाहे वो आप घर पे हैं या फिर आप ऑफिस में हैं, नियरेस्ट फायर स्टेशन का डायरेक्ट नंबर अगर आपके पास है तो वो प्रेफरेबल है। डायरेक्ट नंबर भी होता है इनका, और 101 या फिर 112 के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिक फायर फाइटिंग को समझने के लिए हमें फायर एक्सटिंग्विशर को समझना पड़ेगा। आप सभी ने एक्सटिंग्विशर देखा होगा, जगह जगह एक्सटिंग्विशर्स रेड कलर के होते हैं। एक एक्सटिंग्विशर होता है जो रेड कलर का नहीं होता। आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा एक्सटिंग्विशर रेड कलर का नहीं होता है? वैसे तो यूनिवर्सल कलर है कि सभी जितने भी टाइप्स के एक्सटिंग्विशर्स हमारे आसपास लगाए जाते हैं वो सब रेड कलर में होते हैं। शुभम इज सेइंग गैस, नो, गैस बेस्ड भी रेड कलर के हो सकते हैं। ओके। एक एक्सटिंग्विशर जो है सिल्वर कलर का आता है जो कि के टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, स्पेशली किचन्स में उसको रिकमेंड किया जाता है आजकल। फायर एक्सटिंग्विशर की एनाटॉमी समझते हैं तो कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक उसका सिलेंड्रिकल शेप का बॉडी होगा जिसके अंदर उस फायर एक्सटिंग्विशर की जो मेन कंपोनेंट है, या तो उसमें ड्राई केमिकल पाउडर हो सकता है या उसमें कोई
ऐसी गैस हो सकती है जिससे कि हम फायर फाइटिंग कर सकें। उसमें CO2 हो सकता है, उसमें क्लीन एजेंट बेस्ड कोई न्यूट्रल गैस हो सकती है जिससे कि फायर फाइटिंग की जा सके। सबसे ज्यादा जो यूज में आते हैं एक्सटिंग्विशर्स वो ड्राई केमिकल पाउडर एक्सटिंग्विशर्स हैं, जिसमें मोनो अमोनियम फास्फेट MAP बोलते हैं, उसको फिल किया जाता है और उसमें प्रेशर डाला जाता है विद सिलिंड्रिकल बॉडी के बाद उसके अंदर सेकंड कंपोनेंट है एक्सटिंग्विशर को चालू करने के लिए एक ट्रिगर दिया जाता है। डिस्चार्ज लीवर बोल सकते हैं या ट्रिगर बोल सकते हैं। वो अलग अलग शेप का होता है, V शेप का भी हो सकता है और जैसे टैप हमारी होती है उस तरीके की शेप का भी वो हो सकता है। डिस्चार्ज होज उसमें होता है। डिस्चार्ज उस पे एक डेटा प्लेट होती है जिसपे लिखा होता है कि ये कौन सी टाइप का एक्सटिंग्विशर है। अब टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर समझने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि टाइप ऑफ फायर कितनी होती, कितनी तरीके की फायर होती है, क्योंकि जितनी तरीके की फायर है उसी के अकॉर्डिंग उस डेटा प्लेट पे उस एक्सटिंग्विशर के ऊपर उस एक्सटिंग्विशर की टाइप लिखी होती है। और ये जो क्लासिफिकेशन है फायर की उस पे मेंशन होती है ABCD करके, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। तो हम वापस इसी स्लाइड में टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन समझने के बाद कोई इजी हो जाएगा समझना कि कौन सी क्लास की फायर के लिए हमें किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज करना है और कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सा एक्सटिंग्विशर है। इस चीज को हम समझते हैं अभी थोड़ा सा। बहुत सिंपल क्लासिफिकेशन है, ABCD अलग अलग नाम दिया हुआ है फायर को। और ये क्लासिफिकेशन जो है फायर की, इट इज बेस्ड ऑन फ्यूल टाइप विच इज पार्ट ऑफ फायर ट्राइंगल। अगर हम क्लास A की बात करते हैं तो क्लास A मींस द फायर विच हैज फ्यूल, सॉलिड फ्यूल। अब सॉलिड फ्यूल कौन से हो सकते हैं? पेपर, प्लास्टिक, लकड़ी, जितना भी नॉर्मल सॉलिड हम अपने आसपास देखते हैं, अगर उसमें फायर होगा दैट विल कम अंडर क्लास A। क्लास B में कौन सा आएगा? लिक्विड फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, थिनर। अगर इसमें फायर होता है दैट विल कम अंडर क्लास B फायर। उसी तरीके से क्लास C फायर है। क्लास C फायर में हमारा गैसेस प्राइमरी क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट गैसेस। जैसे घरों में LPG यूज करते हैं, अगर उसमें फायर होगा दैट विल कम अंडर क्लास C। और क्लास C के अंदर ही हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में होने वाली फायर को भी कवर करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे एनर्जाइज्ड है, पावर कनेक्टेड है उसमें, दैट विल कम अंडर क्लास C। और अगर पावर डिस्कनेक्ट हो चुकी है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, देन वी विल ट्रीट दैट फायर एज क्लास A फायर। उसी तरीके से D फायर होती है। क्लास D फायर में हमारा मेटल्स में होने वाली फायर, रिएक्टिव मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें फायर हो सकती है। ये रिएक्टिव केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रीज में नॉर्मली मिलते हैं। आपको इतना इजीली अपने आसपास ये क्लास D की बहुत कम है ये फायर होने की पॉसिबिलिटी। तो आपको समझना है ABC, A सॉलिड, B लिक्विड एंड C इज इलेक्ट्रिकल प्लस गैसियस। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टैंडर्ड। और एक नई क्लास मैंने अभी जो एग्जांपल दिया था जिसका सिल्वर कलर का एक्सटिंग्विशर आता है, दैट इज क्लास K फायर। इज फॉर किचन, कमर्शियल किचन्स में होने वाली फायर को अभी कुछ कंट्रीज के अंदर सेपरेट किया है एंड इन इंडिया आल्सो वी आर हैविंग K टाइप एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल, क्योंकि उसका जो प्रॉपर्टी होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज K क्लास फायर। उसको सेपरेट कर दिया गया है। जो अभी हमने डिस्कस किया है दैट इज समराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस विजुअल क्लासिफिकेशन। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग द एक्सटिंग्विशर, क्योंकि अगर आपने एक्सटिंग्विशर गलत चूज कर लिया, अगर आपकी लिक्विड फायर है और वहां पे आपने फॉर्म या वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया तो वो इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की फायर है और कौन सा एक्सटिंग्विशर हमें यूज करना है। बट इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आजकल हमारे पास मल्टीपर्पज एक्सटिंग्विशर्स भी अवेलेबल हैं, जो
सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वाली फायर है क्लास ए, बी या सी। इन तीनों फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप में से कितने लोगों ने एक्सटिंग्विशर को यूज किया है कभी ट्रेनिंग में, टेस्टिंग में? आप कुछ रैंडम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, आई विल गेट एन आइडिया। हम वापस एक्सटिंग्विशर पे आते हैं। आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इज। अब हम एक्सटिंग्विशर पे वापस आ गए हैं। ओके, विशाली सिंह इज यूज्ड। अक्षिता ने भी यूज किया है CO2 टाइप। सचिन इज ऑल्सो सेइंग ट्रेनिंग्स में यूज करते हैं, बहुत सारी मॉक ड्रिल्स में यूज करते हैं, इवन मैंने भी मॉक ड्रिल्स में ही यूज किया है। एंड एक बार रियल फायर में भी यूज किया इन आवर सोसाइटी नेबरहुड में। महेंद्र जी इज ऑल्सो सेइंग ओके। तो अभी वही लोग बता रहे हैं जिन्होंने यूज किया है, तो बाकी सबने इसका मतलब नहीं किया। आई एम अज्यूमिंग दैट। ओके, तो एक्सटिंग्विशर यूज करने के ना यूनिवर्सल जो मेथड है, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। लेकिन ये सिंपल सुनने में है, लेकिन कुछ सावधानी हमें बरतनी है किसी भी एक्सटिंग्विशर को चलाने से पहले, वो मैं आपको साथ बताऊंगा। और इसको समझने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हम करेंगे कि किस तरीके से एक्सटिंग्विशर्स को यूज किया जा सकता है, और वो डेमोन्स्ट्रेशन हम वीडियो प्ले करके करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी एक्सटिंग्विशर को अनलॉक करना। जितने एक्सटिंग्विशर आप अपने आसपास देखेंगे वो लॉक होंगे, और वो लॉक किससे होंगे? एक पिन लगी होगी उसके अंदर। वो पिन ऊपर हो सकता है अगर CO2 टाइप है, वो पिन साइड में हो सकता है अगर वो ABC या मल्टीपर्पज टाइप एक्सटिंग्विशर है। तो आपको पिन देखना है और उस पिन को निकाल देना है, सबसे पहला स्टेप। एक्सटिंग्विशर को अनलॉक करने का तरीका क्या है? आपको पिन को पुल करना है, पुल द पिन। ये फर्स्ट स्टेप है चलाने के लिए। आप अभी समझिए, सुनिए इसको ध्यान से, और जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे फॉलो होते हैं स्टेप्स। आपने पिन को निकाल दिया, अभी एक्सटिंग्विशर अनलॉक हो चुका है। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? एम एट द बेस। जहां पे भी फायर है उसके बेस में आप एम करेंगे। और आपको डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है। जो आपका मल्टीपर्पज या ABC टाइप या ड्राई केमिकल पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 10 फीट के डिस्टेंस तक वो फायर फाइटिंग कर सकते हैं उससे। आप नजदीक जा सकते हैं, लेकिन इतना नजदीक जाना है कि आप अपने आप को भी सेफ रखें। एम एट द बेस ऑफ फायर में आपको क्या करना है? एम करते हुए आपको डिस्चार्ज होज जो होगा उसको, जहां से जो भी केमिकल है या उस एक्सटिंग्विशर का मीडिया है वो निकलेगा, तो आपको होल्ड करना है डिस्चार्ज होज, और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए जहां पे भी फायर लगा है उसके बेस में। अगर बेस में नहीं होगा तो फायर फाइटिंग में डिले होगा। बेस में हम इसलिए करते हैं ताकि फायर ट्राइंगल डिस्कनेक्ट हो जाए, एक एलिमेंट हट जाए और वहां पे फायर एक्सटिंग्विश हो जाए। नेक्स्ट, एम करते हुए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप ओपन एरिया के अंदर हैं तो हवा की डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आप एनक्लोज्ड एरिया में हैं तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि सफोकेशन ना हो जाए। अगर एनक्लोज्ड एरिया है और आपने CO2 एक्सटिंग्विशर यूज कर लिया बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो वहां पे ऑक्सीजन खत्म हो सकते हैं और उससे सफोकेशन फील हो सकता है थोड़ी देर के लिए, अगर वेंटिलेशन परफेक्ट नहीं है तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे एम करते हुए। अगर ओपन एरिया में है तो आपको हवा की डायरेक्शन में ही फायर फाइटिंग करना है। अगर आप अंदर हैं बिल्डिंग के या एनक्लोज एरिया में है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे सफोकेशन ना हो, और आपकी डायरेक्शन ऑफ फायर फाइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपके बैक साइड में एक एग्जिट हो। बैक साइड में एग्जिट क्यों जरूरी है? कि अगर आपकी फायर फाइटिंग सक्सेसफुल नहीं रही तो आप वहां से इवैक्यूएट कर सको। आपको एग्जिट्स का बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए, और अगर एग्जिट का क्लैरिटी नहीं है, यू शुड नॉट यूज एक्सटिंग्विशर। आपकी प्रायोरिटी एक्सटिंग्विशर चलाना नहीं होगा। आपकी प्रायोरिटी क्या होगा? वहां से इवैक्यूएट करना उस टाइम पे प्रायोरिटी होगा, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिट रूट्स। अगर एग्जिट्स क्लियर हैं तभी आप यूज करेंगे एक्सटिंग्विशर को। डायरेक्शन सेकंड स्टेप आपको क्लियर हो गया, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेना है। थर्ड स्टेप इज स्क्वीज द ट्रिगर। स्क्वीज द ट्रिगर कैसे करते हैं? वी शेप का अगर नोजल है तो हम उसको प्रेस कर देंगे।
अगर हमारा राउंड शेप है तो उसको हम जैसे एंटी क्लॉकवाइज पानी की टैप चलाते हैं उस तरीके से हम चलाएंगे। और इसको स्क्वीज करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो डिस्चार्ज होज है उसकी डायरेक्शन और उस पे मजबूती से आपकी पकड़ बनी हो। अगर आपका डिस्चार्ज होज से और आपने गलती से स्क्वीज कर दिया एक्सटिंग्विशर, तो डिस्चार्ज होज के अंदर अगर ज्यादा प्रेशर जाता है, आपने फुल प्रेशर पे अगर ट्रिगर कर दिया, तो वो डिस्चार्ज ट्यूब आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है और उससे किसी को इंजरी भी हो सकती है। लेकिन बहुत सिंपल है, आप ट्यूब को मजबूती से पकड़ें और उसके बाद ही स्क्वीज करें। स्क्वीज करने के बाद आपको क्या करना है, स्वीप साइड टू साइड, जहां पे भी फायर है उसके ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करने के लिए आपको स्वीप करना है। तब हम इसको देख लेते हैं एक बार वीडियो के थ्रू। आई एम शेयरिंग माय वीडियो स्क्रीन। कैसे हमें ये करना है, मुझे 1 मिनट दो, मैं जस्ट इसका वीडियो निकाल लेता हूँ एक बार। I hope video screen is visible now. I'm playing this video of extinguisher. जस्ट मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको वीडियो विजिबल है और ऑडियो भी इसका क्लियर आ रहा है। सिर्फ वीडियो विजिबल है, ऑडियो बहुत मतलब फीबल ओके, है, बहुत लो वॉल्यूम है। सो वॉल्यूम तो यहाँ पे हाई है, स्टिल आई से ठीक है, आप विजुअल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ये क्लासिफिकेशन हमने अभी डिस्कस किया ABCD के, मैं डायरेक्टली जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये चारों स्टेप्स जो हमने अभी देखे हैं, ये इस तरीके से आप देखिए कि पिन को निकाला गया है सबसे पहले स्टेप में। पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज। तो कुछ विजुअल्स हमने अभी देखे जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। पास तो हम बोलते हैं मेथड ऑफ फायर फाइटिंग। वापस हम स्लाइड्स पे चलते हैं। यस, सो हम सभी को ये एक्सटिंग्विशर चलाना चाहिए, चलाना आना चाहिए, क्योंकि ये फायर फाइटिंग का फर्स्ट एड है और हमें सबको पता होना चाहिए कि कैसे हमें इसको ऑपरेट करना है, क्योंकि जगह जगह पे ये इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि इनिशियल स्टेज में ही हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकें, इनिशियल स्टेज में ही हम फायर को स्टॉप कर और उसमें इमरजेंसी की सिवियरिटी को बढ़ने की पॉसिबिलिटी ही ना हो।
नो हाउ टू रिपोर्ट एन इमरजेंसी। हम बात कर रहे थे मैनुअल कॉल पॉइंट की। आजकल कई तरीके के मैनुअल कॉल पॉइंट आते हैं, लेकिन इनका पर्पस होता है मैनुअली अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करना। आपने इस तरीके के रेड कलर के स्विचेस देखे होंगे। नॉर्मली ये ऑफिसेज के अंदर और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में, मॉल्स के अंदर लगाए जाते हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग है, यानी कि 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग्स हैं, उसमें भी ये लगे होते हैं। तो आपको किस तरीके से कन्वे करना है इमरजेंसी के बारे में, और केवल फायर को ही नहीं, किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में हम मैनुअल कॉल पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं कन्वे करने के लिए, अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास मैनुअल कॉल पॉइंट कहाँ पे लगे हैं और कैसे उसको यूज करना है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, यही होता है यूज ब्रेक द ग्लास यूनिट। इसका ग्लास आप ब्रेक करेंगे और ब्रेक करते ही एक पुश बटन होता है जो रिलीज हो जाता है, और उसके रिलीज होते ही वो पूरे बिल्डिंग के अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा जहां पे भी ये इंस्टॉल्ड है। रीजंस ऑफ डेथ इन फायर, 80% of death are because of poisonous gases, smoke. 5 to 8% deaths are due to jumping from upper floor. और जंपिंग से मुझे याद आ रहा है एक इंसिडेंट सूरत के अंदर हुआ था, अगर आपको याद हो तो। उस सूरत के अंदर 2 डेथ केवल इस वजह से हुई थी कि वहां से स्टेयरकेस से रास्ता नहीं था और उन लोगों ने जंप किया। हालांकि कई लोगों ने जंप किया, लेकिन जंपिंग की वजह से 2 डेथ हुई थी वहां पे, सूरत कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर जो फायर हुई थी। सो एक छोटा सा एक्टिविटी है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम स्मोक इन केस ऑफ फायर। हमें स्मोक से कैसे बचना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा इसमें। Anu is saying cover the face, Shubham is saying crawling। स्मोक से बचना है हमें, उसके लिए बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा। सचिन इज कमेंटिंग कवर फेस विद वेट क्लोथ्स, यस करेक्ट है। Anu is also correct, Sachin is also correct, yes, so you are right। सबसे इफेक्टिव तरीका है स्मोक से बचने के लिए कवर द फेस विद वेट क्लॉथ, और उस एरिया से निकलने के लिए हमें क्रॉल करके ही निकलना चाहिए, क्योंकि लोअर लेवल पे स्मोक की इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल बेस्ट वे, अगर 4 में से 1 सेलेक्ट करना है तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्रॉलिंग इज ऑल्सो रेलेवेंट इन केस ऑफ स्मोक। वी शुड क्रॉल डाउन, जैसे छोटे बच्चे क्रॉल करते हैं उस तरीके से हमें फ्लोर लेवल पे क्रॉल करते हुए निकलना है, हमें भागना नहीं है वहां से। और किसी भी तरीके से हम अपने फेस को अगर वेट क्लॉथ से कवर कर लेते हैं तो इट विल गिव अप्रोक्सीमेटली 30% फिल्टरेशन इफेक्ट ऑफ स्मोक। और वो 30% फिल्टरेशन इफेक्ट की वजह से हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होगा उस स्मोक में सरवाइव करने के लिए, या उस स्मोक के अंदर इवैक्यूएशन करने के लिए। स्मोक इज द मोस्ट डेंजरस एलिमेंट इन केस ऑफ फायर, और मैंने अभी आपको डेटा दिखाया सबसे ज्यादा जो है की वजह से ही होती है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो फायर के सिचुएशन में हम अक्सर करते हैं, इसीलिए ये फायर फाइटिंग की बेसिक की अवेयरनेस हमें होना चाहिए। अभी आपको फायर की क्लासिफिकेशन आपको पता चल गई है। बहुत सारे होम फायर प्रिवेंशन टिप्स है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। आई विल बी टेकिंग दोज थिंग्स। सो ये चीजें हम, टाइप्स ऑफ फायर हमने कर लिया ऑलरेडी, ABCD and K इज फॉर किचन। आपके कमेंट्स कुछ भी हैं, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं साथ साथ। और फायर फाइटिंग की सक्सेस तभी मानी जाती है जब नॉलेज परफेक्ट, उस नॉलेज को हम यूज कर पाए, हमारे आसपास सिस्टम्स लगे हों, और सिस्टम्स नहीं भी लगे हैं तो हम बिना उन सिस्टम के भी कैसे फायर एक्सटिंग्विश की जा सकते हैं, वो सारी चीजें भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है। एक्शंस इन केस ऑफ फायर फाइटिंग वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि करना है, हमारे एक्शन क्विक होने चाहिए, मटेरियल यूज करना है फायर फाइटिंग के लिए। कुछ
एग्जांपल्स हम अभी डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास एक्सटिंग्विशर नहीं है और हमारे आसपास फायर हो जाता है, तब हम, मान लो घर में है या कहीं पे भी है, सब जगह पे तो एक्सटिंग्विशर नहीं होते हैं, देन व्हाट डू इन दैट सिचुएशन? कौन से तरीके हमारे पास हैं, किस तरीके की तैयारी हमें करके रखनी है कि एक्सटिंग्विशर नहीं है और हम फिर भी फायर फाइटिंग कर पाए इन केस ऑफ फायर? हम घर का ही एग्जांपल लेते हैं, कैसे करेंगे उस सिचुएशन में? डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रिकल एरिया के अंदर फायर हो चुकी है, आपके पास एक्सटिंग्विशर नहीं है, आप क्या यूज करेंगे घर के अंदर? आई एम वेटिंग इनपुट्स। क्वेश्चन क्लियर है? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ब्लैंकेट हो सकता है इफेक्टिव ना रहे इलेक्ट्रिकल, क्योंकि नहीं होगा स्विच ऑफ द मेन। अगर ही फायर हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी मेंस के अंदर ही फायर की होती है, स्विच ऑफ द मेन पावर स्विच एंड यूज वाटर। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। ब्लैंकेट, फ्लोर, यस, सैंड, सैंड इज ऑल्सो गुड वे, और इज ऑल्सो वेरी रेलेवेंट वे। जो आटा होता है घर में उसको भी यूज किया जा सकता है, साल्ट को भी ये सैंड जैसा ही इफेक्ट देगा। अमृता इज वेरी करेक्ट इन रिस्पॉन्डिंग दिस। सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, सैंड का यूज कर सकते हैं। सैंड रेडिली अवेलेबल नहीं है तो घर में जो आटा होता है, अगर इनिशियल स्टेज में है फायर, तो आपका इवन आटा भी काम आ जाएगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आग बढ़ चुकी है, तब आप फायर में नहीं डाल सकते आटा, शुरुआत में आपका इफेक्टिव है। सैंड भी परफेक्ट है। तो बिना एक्सटिंग्विशर के बहुत सारे हमारे उस टाइम पे कॉन्शियस डिसीजन हमें लेने होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि क्या यूज करेंगे उस सिचुएशन में। तो इलेक्ट्रिकल फायर की सिचुएशन में ये सब कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं। देखो, अगर फायर छोटी है तो उसके बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर आग बढ़ जाती है तो वो सारे तरीके हमारे खत्म हो जाते हैं। अमृता इज सेइंग डोंट टच एनी स्विच बोर्ड। वेरी ट्रू। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फायर मेन स्विच बोर्ड में ही हो जाता है। उस टाइम पे फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें। सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के लिए हमें बोला गया था, लेकिन जहां से सप्लाई डिस्कनेक्ट करनी है वहां पे ही फायर हो चुकी है। और कई बार ऐसी गलतियां भी लोग कर देते हैं कि पानी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए हमें। सैंड का यूज, पानी का यूज, फोम जो कि एक्सटिंग्विशर से क्रिएट हो सकता है, ट्राई, वेट, जैसे किचन में बहुत बहुत होती है, उस केस में भी हम जो है ब्लैंकेट का या टॉवल का यूज कर सकते हैं। पांडे इज गिविंग वेरी रेलेवेंट इनपुट कि कोई भी डिजास्टर या इमरजेंसी की सिचुएशन में जितना हमारा माइंड काम होगा, उतना हमारा डिसीजन लेने की कैपेसिटी परफेक्ट होगी। यू कैन यूज द बैम्बू स्टिक फॉर कटिंग द पावर सप्लाई। यस, ड्राई होना चाहिए, वो यूज कर सकते हैं। कोई भी नॉन कंडक्टिव चीज का हम यूज कर सकते हैं। घरों के अंदर जो फायर होती है, बहुत सारी फायर ना बहुत छोटी छोटी गलतियों की वजह से होती है। तो इट पॉसिबल फायर हैजार्ड्स अराउंड द होम एंड टू टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट यू एंड योर फैमिली फ्रॉम फायर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम जहाँ पे सारे फायर के इंतजाम है वहीं पे ही फायर। कुकिंग अगर कुछ फायर होता है, और टाइम पे वो को क्लियर होना चाहिए। ऑयल वाले तरीके ऑयल हो, पानी का यूज नहीं करना है, नहीं तो वो फायर की इंटेंसिटी। तो ये जो सबसे इफेक्टिव तरीका जो काम है वो
ब्लैंकेटिंग है, किसी भी तरीके से अगर हम जो फायर जहां से इनिशिएट हुआ है, कढ़ाई भी बर्तन के अंदर फायर है, तरीके से वेट ब्लैंकेट, टॉवल ले सकते हैं, बोरी ले सकते हैं, बहुत सारे जूट बैग यूज कर सकते हैं। से आप इस, अगर आपने कोशिश करी कुछ और यूज करने की, इवन ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं कमर्शियल किचन्स में स्पेशली कि उन, मतलब किसी भी टाइप की फायर होगी, आप एबीसी एक्सटिंग्विशर यूज कर लो मल्टीपर्पज। किचन के अंदर उनकी डीप फ्राइंग में फायर हुआ और उस फायर के अंदर उन्होंने एबीसी टाइप एक्सटिंग्विशर यूज किया। अब एबीसी एक्सटिंग्विशर का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उन्होंने जैसे ही एक्सटिंग्विशर चलाया, वो जो ऑयल था, जो डीप केमिकल पाउडर के अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है एक्सटिंग्विशर का, स्पेशली किचन में। अगर घरों में है तो क्या अमाउंट होता है ऑयल का, तो हम उसको ब्लैंकेटिंग से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कमर्शियल किचन की बात करें, वहां पे हो सकता है ब्लैंकेटिंग भी काम ना करे, वहां के लिए हमें क्या करना है, के टाइप एक्सटिंग्विशर्स अलग से आते हैं, वो हमें यूज करने हैं, विच इज इफेक्टिव इन के टाइप फायर। किचन के अंदर एक और इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। सबसे बड़ा डेंजर किचन के अंदर और क्या है अपार्ट फ्रॉम फायर? Any example from participants? एलपीजी, यस, एलपीजी के अंदर भी फायर हो सकता है, और वहां पे भी हमारा ये जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया है, गीला कपड़ा, टॉवल, या फिर जिस भी तरीके से हम ब्लैंकेटिंग कर सकें उस सिलेंडर को, एलपीजी गैस को, उस तरीके से हमें करना है। जमुना रेत, ओके, सविता सिंह, जमुना रेत, यमुना की आप बात कर रहे हैं? ओके, कोई भी रेत आप यूज कर सकते हैं, वो यमुना रेत नहीं भी है तो भी चलेगा। किचन के जो अप्लायंसेज है, इवन कुकर कैन बी डेंजरस। अगर उसका सेफ्टी वॉल्व का हमने टाइमली क्लीनिंग नहीं किया तो कुकर कैन ऑल्सो ब्लास्ट, उससे भी ब्लास्ट हो सकता है। तो उसके अंदर आपको चेक करना है, आपने देखा होगा जो उसका सेफ्टी वाल्व होता है, सबसे पहले तो आपको उसकी टाइमली क्लीनिंग करनी है। अगर वो भी क्लीनिंग टाइमली नहीं होती है तो उसका जो पर्पस है वो फेल हो जाएगा, एंड इट कैन लीड टू serious incident. We can use if LPG is leakage. हाँ, लीकेज के लिए यूज कर सकते हैं। अमृता इज गिविंग गुड इनपुट। हाउसकीपिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो हम बात कर रहे हैं फाइटिंग की, प्रिवेंशन की हमने बहुत ज्यादा बात नहीं करी है, क्योंकि हमारे सेशन का जो थीम है वो फाइटिंग है, कि इमरजेंसी आ गई है, अब हमें फाइट करना है, ठीक है। तो हाउसकीपिंग वाला जो पार्ट है वो प्रिवेंटिव है, हमें मेंटेन करनी है ताकि कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से फायर की इंटेंसिटी बढ़ जाए। सर्वाइवल गाइड इन केस ऑफ फायर, कैसे सर्वाइव करना है, स्टे काम। आप देखेंगे सबसे क्या है, वी शुड टेक कॉन्फिडेंट डिसीजंस, और वो तभी ले पाएंगे जब आपका माइंड बिल्कुल पीस पे है। कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कॉमन है। वी शुड यूज ओनली एस्केप रूट्स बिकॉज दे आर बिल्ट फॉर द पर्पज। अगर हम ऑफिस स्पेस में है या इंडस्ट्रियल स्पेस में है, लिफ्ट कभी भी यूज नहीं करनी चाहिए इन केस ऑफ फायर। अगर स्मोक हो जाते हैं तो हमें किसी तरीके से अपने फेस को, नोज को कवर करना है गीले कपड़े से। अगर रूम में ट्रैप हो जाते हैं तो हमें उस एरिया को सील कर देना है, सील करने के लिए गीले कपड़े का इस्तेमाल करना है, आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। और क्या नहीं करना है, ये भी कुछ प्रिकॉशंस दी गई हैं। नेवर यूज लिफ्ट, डू नॉट स्टॉप टू कलेक्ट बिलोंगिंग्स, क्योंकि लाइफ ज्यादा जरूरी है, आप बिलोंगिंग्स पे ध्यान ना दें। इमीडिएट इवैक्यूएशन होना चाहिए वहां पे। तो फायर के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक की। फायर वाले पार्ट में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने बेसिक लेवल का कवर किया है काफी।
बहुत कॉमन चीजें, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम उस टाइम पे सही तरीके से कर देते हैं तो ये बहुत बड़े इंसिडेंट को होने से रोक सकते हैं। So any input, any queries related to fire? So let's proceed then with earthquake. Earthquake में बहुत बार confusion होता है कि हमें करना क्या है। Earthquake आया and now tell me the perfect answer. If you are at first floor, let's earthquake की क्या है seriousness, and then we'll take this question. Amrita is asking one question on fire. Tell me more about cylinder LPG fire related. Okay. LPG फायर को आपको बताऊं अभी तो उसमें 3 तरीके की पॉसिबिलिटी हो, या तो जो आपका रेगुलेटर है उसके पाइप में लीकेज हुआ है जिसकी वजह से फायर है, या जो वाल्व होता है जहां से कनेक्ट होता है वो वहां पे लीक हो सकता है। तो अगर पाइप लीकेज है जिसकी वजह से फायर इनिशिएट हुआ है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरीके से रेगुलेटर को ऑफ कर दें आप, ताकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए और फायर स्टारवेशन फायर फाइटिंग मेथड से एक्सटिंग्विश हो जाए एलपीजी सिलेंडर की। और अगर सिलेंडर के ऊपर हो चुका है तब आपका जो इफेक्टिव तरीका है वो है ब्लैंकेटिंग, गीले कपड़े से उसको कवर करना है और एक सील बना देनी है उसको, ताकि वहां पे ऑक्सीजन चाहिए जो एलपीजी को बर्न होने के लिए वो ना मिले और फायर एक्सटिंग्विश हो जाए। तीसरा एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि एलपीजी से फायर हुआ और उस फायर की वजह से किचन के आसपास काफी ज्यादा फायर हो चुकी है और आपका वहां पे अंदर जाना भी पॉसिबल नहीं है, और वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो एलपीजी तक ही सीमित नहीं है, एलपीजी के अलावा बाकी एरिया को भी कवर कर चुका है किचन के। तो उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से आप अगर उस एलपीजी सिलेंडर को उस फायर वाले एरिया से बाहर निकाल सकते हैं तो वो आपका एक उस इंसिडेंट को मिनिमाइज कर देगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, तीनों के अलग अलग रिस्पॉन्स हैं। पहले में आपको रेगुलेटर ऑफ करना है अगर पाइपिंग में फायर हुआ है, दूसरे में आपको ब्लैंकेटिंग करना है अगर सिलेंडर के मेन वाल पे ही फायर हुआ है, तीसरा अगर की इंटेंसिटी बढ़ चुकी है तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी तरीके से उस हाई हीट का इम्पैक्ट एलपीजी सिलेंडर को ना हो, तो सिलेंडर को ही बाहर निकाल दें और किसी ओपन एरिया में उसको चलने दें, कुछ नहीं होगा उसमें। Because these cylinders, LPG cylinders are tested, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्टिंग होती है उसकी 5 to 10 टाइम्स, जो उसका प्रेशर ऑलरेडी होता है उसके अंदर उसके 5 से 10 गुना प्रेशर पे उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो बहुत टाइम लगता है उसको ब्लास्ट होने में, तब तक आप उसको अगर हाई टेम्परेचर में छोड़ते हैं तो वहां पे ज्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज अंदर से प्रेशर बनेगा एलपीजी का ब्लास्ट होने के लिए। तो आपको वहां से बाहर निकालना ही एक सेफ तरीका है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आप को वहां से बाहर निकालें, इवैक्यूएशन करें। So I hope Amrita, this input on your question is fine. Okay. तो अर्थक्वेक जोनेशन की हम बात करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए अर्थक्वेक की जोनेशन हुई है। ज्योग्राफिकल location के अकॉर्डिंग, soil texture के अकॉर्डिंग, and then there are plate tectonics which is involved in this classification. उस टेक्निकल डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस लोकेशन पे हैं वो कौन सी जोन में आता है। और जोन का मतलब क्या है, जोन वाइज ये डिफाइंड है कि वहां पे कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गुड़गांव की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो आप इमेज से देख के बता सकते हैं कि कौन सी जोन में हम हैं। बता सकते हैं आप में से कौन सी जोन दिख रही है हमें? जोन 4, यस नित्या इज करेक्ट। जोन 4 का मतलब है कि वहां पे हाई रिस्क क्वेक्स अप टू मैग्नीट्यूड 7.9 तक अर्थक्वेक आ सकता है।
तो इसका मतलब जब हमें पहले से पता है कि ये इमरजेंसी आ सकती है, तो हमें कुछ तो तैयारी करनी पड़ेगी। और वो तैयारी क्या करनी है? अपने स्ट्रक्चर्स को हमें मजबूत बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि अर्थक्वेक डोंट किल पीपल बट बिल्डिंग्स डू। अर्थक्वेक आएगा चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बिल्डिंग हमारी फ्लेक्सिबल है, बिल्डिंग में हमारा स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग है, तो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट भी कुछ नहीं होगा। बहुत रेयर चांस होते हैं कि अर्थक्वेक से इम्पैक्ट हो, अगर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग है, बिल्डिंग स्ट्रक्चरली स्टेबल है। और आजकल ऐसे डिजाइन और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के थ्रू ये सब पॉसिबल है कि हम बिल्डिंग्स को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सके अप टू सर्टेन लेवल। तो इसमें स्टडीज होती हैं कि कौन सी बिल्डिंग किस लेवल तक का अर्थक्वेक, किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक, जो कि रिक्टर स्केल में हम मेजर करते हैं, वो फेस कर सकते हैं। तो देखो, हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अभी स्किप कर रहे हैं इसमें, बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन है अर्थक्वेक से रिलेटेड। इफ यू आर एट फर्स्ट फ्लोर, व्हाट विल यू डू ड्यूरिंग अर्थक्वेक ट्रेमर्स? क्या करेंगे आप? चार ऑप्शंस हैं आपके सामने। Be calm and no action needed. Immediately rush to ground floor. Second option. Third option is rush towards staircase and hide under the strong object. And fourth one is take drop cover and hold on position. Okay. So coming, majority is saying 4. I got one response, be calm and try to go outside. That is wrong answer. Correct answer is 4. और हम इस लॉजिक को समझेंगे कि क्यों ये जरूरी है। ठीक है, अब ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन पोजीशन को समझने के लिए हम एक वीडियो देखते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन का। अगर आपने कोशिश करी फर्स्ट फ्लोर से भी ग्राउंड फ्लोर पे आने की, तो जरूरी नहीं है कि आप ग्राउंड फ्लोर तक आ पाओ, अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है तो। कुछ सेकंड्स हमारे पास होते हैं, और अगर वो कुछ सेकंड्स हमने वेस्ट कर दिए बिल्डिंग से बाहर आने में, या अगर हम ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं, बाहर आने में हमने वेस्ट कर दिए ड्यूरिंग ट्रेमर्स, तो उसकी वजह से जो हमारी पोजीशन है, जो हम अपनी पोजीशन ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन लेके अपने आप को सेव कर सकते हैं, वो भी हम मिस कर देंगे। तो बहुत बार कंफ्यूजन होता है, जब ट्रेमर्स होंगे उस टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, आपको इवैक्यूएशन नहीं करना है, लेकिन आपको ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन की पोजीशन लेनी है। और इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए मैं एक वीडियो शेयर कर रहा हूं आपसे। उस वीडियो में हम देखते हैं कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन की पोजीशन क्या होती है, कैसे हमें इसको लेना है। ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन पोजीशन लिया गया है, और उसको कैसे रेलेवेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें।
So this is the position to take during earthquake tremors. So it is clearly stated that if you're तो अगर कोई शेल्टर नहीं भी है तो भी आप ये पोजीशन ले सकते हैं, बिकॉज इस पोजीशन में बेनिफिट क्या होता है कि हेड इंजरी की जो पॉसिबिलिटी है वो कम से कम हो जाती है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि कोलैप्स हो सकता है बिल्डिंग, उसी वजह से ये पोजीशन लेना मैंडेटरी है ड्यूरिंग ट्रेमर्स। सो दिस ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन कॉन्सेप्ट इज क्लियर। लॉजिक यही है कि दिस पोजीशन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम गेटिंग आवर हेड इंजर्ड। तो हेड इंजरी की पॉसिबिलिटी कम से कम हो जाती है इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% सेफ है ये पोजीशन, बट इट विल मिनिमाइज द रिस्क। सेकंड क्या होता है कि अगर रियल में कोलैप्स हो जाता है एंड इफ वी हैव टेकन दिस पोजीशन ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन, तो उस सिचुएशन में भी एटलीस्ट वी विल हैव सम ब्रीदिंग स्पेस, तो सर्वाइवल के चांसेस इस पोजीशन में बढ़ जाते हैं। तो कोलैप्स की सिचुएशन में भी और आसपास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं उससे बचने की सिचुएशन में भी दिस पोजीशन इज रिकमेंडेड, ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। तो ड्यूरिंग ट्रेमर्स यू शुड नेवर ट्राई टू स्टार्ट इवैक्यूएशन। बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, वी शुड नॉट इवैक्यूएट ड्यूरिंग ट्रेमर्स, बट आफ्टर ट्रेमर्स आर ओवर देयर आर चांसेस ऑफ आफ्टर शॉक्स, and as per the emergency response team or ERT leader directions, you can have the evacuation. So that ERT leader or emergency coordinator will decide. So now there should not be any confusion. What should we do during tremors? It is always drop cover and hold on, even if you are at ground floor. क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे भागने का, बाहर भी सेफ नहीं है। कोलैप्स का ग्राउंड लेवल से बाहर भी हो सकता है, और one question is coming: if we are in crowded train like Mumbai and earthquake happens, what to do? Okay, सो क्राउडेड ट्रेन का एग्जांपल आपने इसलिए लिया है क्योंकि वहां पे ये पोजीशन भी आप नहीं ले पाएंगे, बट ट्रेन के अंदर अगर आप हैं तो उस सिचुएशन में आपको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी है, पैनिक नहीं करना है, अदरवाइज देयर कैन बी स्टैम्पेड सिचुएशन। अब ट्रेन अगर ऑलरेडी मूव कर रही है तो नाउ द एक्शन विल बी फ्रॉम द ट्रेन ड्राइवर या लोकोमोटिव जो भी है पायलट, उसके थ्रू एक्शन होगा। दे विल सेंस and then they will take action. You don't need to do anything specific during tremors, क्योंकि हो सकता है आपको पता ही ना चले ट्रेन मूवमेंट के दौरान कि अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक को का हमें कैसे पता चलेगा? शेक अगर होगा कुछ भी जहाँ पे भी हम हैं, तो ट्रेन तो ऑलरेडी
मूविंग उसमें है तो यू विल नॉट गेट दैट सेंस, बट एज ए जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा उस टाइम पे। जो प्रोटोकॉल्स हैं, guidelines and as per international standard, and then they will take actions accordingly. Okay, तो नेक्स्ट पार्ट इज बर्न्स। बर्न्स को भी हम वीडियो के थ्रू देखते हैं, बट मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि बर्न्स की देयर आर डिफरेंट वेराइटीज। बर्न आपका हीट से भी हो सकता है, बर्न आपका केमिकल से भी हो सकता है, बर्न इंजरी आपकी इलेक्ट्रिसिटी से भी हो सकती है। आपको हर तरीके के बर्न को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है एज ए फर्स्ट एडर। तो हम समझते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। आई एम स्किपिंग सम स्लाइड्स बट आई विल शो दीज थिंग्स इन वीडियो। बर्न रिलेटेड, लेट मी शो यू वीडियो। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न इसमें होता है। और फर्स्ट डिग्री बर्न में स्किन की जो अपर लेयर है सुपरफिशियल लेवल पे उसका इम्पैक्ट होता है, और थर्ड डिग्री बर्न में हमारा जो इंजरी है वो स्किन को क्रॉस कर जाते हैं एंड इट कैन गो अप टू द बोन्स। तो कॉमन जो प्रिकॉशन है, कॉमन जो फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री बर्न में अगर सुपरफिशियल लेवल पे अपर स्किन पे बर्न इंजरी हुआ है, उसका फर्स्ट एड है कि आप रनिंग वाटर के अंदर उस बॉडी पार्ट को जहाँ पे भी बर्न हुआ है उसको आप रखेंगे और उसको 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर में रखना है, सो दैट उसका इम्पैक्ट कम हो जाए। केमिकल बर्न्स में ये और जरूरी हो जाता है, बिकॉज वी नीड टू डाइल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ केमिकल बर्न। लेकिन अगर बर्न की वजह से कोई आपका इन्फेक्शन या विजिबल कुछ आपका सिम्टम इस तरीके का है कि स्किन के अंदर जा चुका है आपका बर्न का इम्पैक्ट, तो उस टाइम पे आपको वाटर का यूज भी नहीं करना है। उस टाइम पे आपको केवल साफ कपड़े से कवर करके उसको डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें लेके जाना है एज ए फर्स्ट एडर। बट ऐसा ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में होता है, जब इलेक्ट्रिकल रीजंस की वजह से बर्न होते हैं तो वो नॉर्मली सेकेंड या थर्ड डिग्री के बर्न होते हैं। उस सिचुएशन में किसी भी तरीके का ऑइंटमेंट, ट्यूब या जो भी आजकल हम सुनते हैं कि ये उस पे कुछ मिल्क लगा लो या कुछ और चीज लगा लो, दैट शुड नॉट बी यूज्ड। सो रनिंग वाटर इज ऑलवेज रिकमेंडेड in case of any chemical burn, in case of any first degree burn which is up to the first layer or upper layer of the skin। और burn की वजह से अगर blisters हो जाते हैं, there are chances of blisters। I'll see if we have that blister video। Okay, stop, drop, roll, yeah, burns, yeah। So these types of blisters, if happens, we should not break these blisters। इनको फोड़ना नहीं है, because this is something related to our immune system। हमारे जो बॉडी का फ्लूइड है वो वहाँ पे जितने भी फाइटर्स हैं उस बर्न वाले पार्ट को ट्रीट करने के लिए भेजते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर्स। सो वी शुड नेवर ब्रेक दीज ब्लिस्टर्स, अदरवाइज आपकी जो हीलिंग है बर्न की वो डिले हो जाएगी। तो सेकेंड डिग्री बर्न का भी यही है कि आप स्लो वाटर में उसको रनिंग वाटर में करेंगे एंड देन यू विल कवर द स्किन विद द फ्रेश क्लॉथ। थर्ड डिग्री बर्न में आपका इतना इम्पैक्ट हो सकता है कि आपको या किसी भी विक्टिम को पेन भी फील ना हो, अंदर नर्व्स तक डैमेज हो जाता है। तो उस सिचुएशन में केवल और केवल आपको यही करना है कि जितना जल्दी हो सकता है आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं, साफ कपड़े से कवर करके। उसमें हमें डिले नहीं करना है, और किसी भी तरीके का कोई भी एक्सटर्नल मटेरियल या मेडिसिन नहीं लगाना है, अदरवाइज जो डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करना है वो भी डिले होगा उसमें।
So burn से related, I'll show you one video and then we will move to the next part. I'm just taking the relevant section. वीडियो विजिबल है अभी आपको? Yes, sir. केमिकल बर्न्स जो अभी हम बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न अभी देख रहे हैं आप। सेकंड डिग्री बर्न, इट इज थर्ड डिग्री बर्न। So move back to the presentation again. So burn injury is clear कि हमें क्या करना है बर्न के केस में। And now next is animal bites. There are some comments, let me go through. So after finishing your topic, what acid attack in that we will go to hospital, but sometime later. Acid attack. ओके देखो एक क्वेश्चन है एसिड अटैक से रिलेटेड, उसमें ये है कि हॉस्पिटल जाने से पहले हमें क्या करना है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए रनिंग वाटर जितना ज्यादा से ज्यादा हम यूज करेंगे उतना एसिड न्यूट्रलाइज होगा। तो हमें करना वही है कि जिस भी बॉडी पार्ट में इम्पैक्ट हुआ है एसिड की वजह से, जितना हम उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पानी होगा, ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म होना चाहिए, नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर पे पानी होना चाहिए, और उसको हमें ज्यादा से ज्यादा यूज करना है ताकि एसिड जो है, एसिड का इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए जितना होने के चांसेस है।
हॉस्पिटल जाने से पहले आपको फर्स्ट एड में यही करना है एसिड के केस में। और अगर उसकी वजह से सीरियस इंजरीज हो चुके हैं 3rd डिग्री बर्न तक, तब हमें पानी का भी नहीं यूज करना है, तब साफ कपड़े से कवर करके हमें लेके जाना है। लेकिन होता नहीं है इमीडिएटली, वो 2nd और 3rd डिग्री बर्न नहीं होता है एसिड के केस में। नॉर्मली अपर या 1st डिग्री बर्न पे ही ज्यादा इम्पैक्ट होता है स्टार्टिंग में। Animal bites is the next emergency which can come to any individual. Touch electricity pole, then what? Okay, electricity से related we are taking up in the next part. इस animal bite के बाद electricity पे ही है, we will touch upon that. तो एनिमल बाइट्स के केस में हमें जो भी एनिमल बाइट की पॉसिबिलिटी है, इवन अगर सिर्फ टच किया है टीथ ने किसी भी एनिमल के, तब भी हमें रेबीज को सस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हम उसको रोक सकते हैं एनिमल बाइट होने के बाद, अगर हम उसके जो भी आजकल वैक्सीन्स और इंजेक्शंस आते हैं वो लगवा के। बट हमें हर एक एनिमल को रेबीज सस्पेक्ट करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली वी शुड टेक द ट्रीटमेंट फ्रॉम द डॉक्टर। विद इन 24 आवर आपको वो लेना होता है। और डॉक्टर के पास जाने से पहले फर्स्ट एड इसका क्या है कि जहाँ पे भी वाउंड हुआ है या इंजरी हुई है एनिमल बाइट की वजह से, उसको सोप और वाटर की मदद से जितना हम वॉश करेंगे उसका असर उतना कम से कम होगा। सो रन वाटर ओवर द वाउंड फॉर 5 to 10 minutes, clean it with the soap and water, and if there is any kind of bleeding you can cover it after washing with the bandage or any kind of fresh cloth, and immediately you can take the victim to the doctor in case of animal bite. अब ऐसे ही स्नेक बाइट के केस में एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया की अगर हम बात करें तो मोर देन 80% स्नेक्स आर नॉन पॉइजनस। लेकिन स्नेक्स के केस में जो डेथ होती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइजन से होगा, पॉइजन के बारे में सोचने से भी डेथ होती है। तो 20% चांस है कि वो स्नेक जिसने भी बाइट किया है वो पॉइजनस स्नेक होगा। और उसकी पहचान क्या है, यू विल बी एबल टू सी इन दिस नेक्स्ट इमेज। अगर स्नेक बाइट हुआ है और स्नेक बाइट के टाइम पे फैंग मार्क्स हैं, आप जो नीचे वाली इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके के 2 स्पॉट्स वहां पे बने हैं, तो वो आपका पॉइजनस या वेनमस स्नेक बाइट कहा जाता है। और इमीडिएटली जितना जल्दी हो सके हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। और इस केस में भी फर्स्ट एड यही है, डॉक्टर के पास जाने तक उसको वॉश करना है सोप के साथ, वाटर के साथ, एंड देन वी नीड टू टेक जो भी इसके आजकल आते हैं डॉक्टर्स के पास इसके अवेलेबल होते हैं एंटी वेनम। और जहाँ पे भी स्नेक बाइट की पॉसिबिलिटी होती है वहां पे एंटी वेनम्स जो है अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल्स में नियर बाय। नॉन वेनेमस अगर स्नेक है तो उसके निशान कुछ इस तरीके से पड़ेंगे, आप देख रहे हैं जैसे ये इमेज में, जैसे बहुत सारे टीथ उसके होंगे और यहाँ पे 2 स्पॉट्स सेपरेटली बनेंगे। अगर ये बन जाते हैं तो इसका मतलब वो पॉइजनस स्नेक है, और अगर नहीं बनते हैं तो इसका मतलब वो स्नेक जो है पॉइजनस नहीं है, नॉन वेनेमस स्नेक उसको हम बोलते हैं। इस केस में पहले कुछ मिसकॉन्सेप्शन है कि बोलते हैं कि नहीं आप इसको टुर्निके कर दो, यहाँ से भी बांध दो और ऊपर भी बांध दें। वो हमें नहीं करना है। किसी भी तरीके का टुर्निके या किसी भी तरीके से ब्लड फ्लो को नहीं रोकना है। और अभी जैसे इसमें एक इनपुट आ रहा है, ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग देन क्लीन द एरिया। ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं करना है, होने दो जितना ब्लीडिंग हो रहा है। और किसी तरीके से टाइटली या लूजली नहीं बांधना है। आप कवर कर सकते हो साफ कपड़े से या बैंडेज से, लेकिन वो भी टाइटली नहीं होना चाहिए, 1 फिंगर का गैप होना चाहिए कम से कम। तो स्नेक बाइट की सिचुएशन में आपको ये समझना है कि 80% चांस है कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। ठीक है।
रोड एक्सीडेंट्स के केस में हमें किस तरीके से मैनेज करना चाहिए? फर्स्ट एड, हालांकि इसको हम ब्रीफली कवर कर रहे हैं बिकॉज वी हैव इलेक्ट्रिकल आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन. सो रोड एक्सीडेंट्स के केस में चेन ऑफ सर्वाइवल क्या होगा? इफ यू सी एनी काइंड ऑफ रोड एक्सीडेंट्स नियर बाय, यू नीड टू support the victim because you are conscious citizen and you know the first aid, you know how to take the person to the hospital. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको सीन सेफ्टी देखना है. यू नीड टू सी कि जहां पे आप हेल्प करने जा रहे हो किसी की, वो सीन सेफ है या नहीं. फर्स्ट विल बी सीन सेफ्टी, and then you will immediately activate the emergency response system. आप हॉस्पिटल में डॉक्टर को या जो भी नियर बाय एम्बुलेंस है आप उसको कॉल करेंगे. and then you will assess the victim, कि वो रिस्पॉन्सिव विक्टिम है या नहीं. उसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं which we normally cover in the detailed session of first aid, but as a common understanding we need to assess the victim कि उसकी सिचुएशन क्या है, वो सही तरीके से ब्रीथ कर रहा है, उसकी ब्लड सर्कुलेशन चल रही है या नहीं चल रही है. उसकी ब्रीदिंग को चेक करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है, हमें चेस्ट मूवमेंट को देखना होता है. विक्टिम के नजदीक जाके 45 डिग्री का एंगल एक बनेगा, AHA की जो रिकमेंडेशन है, एंड वी विल सी द चेस्ट मूवमेंट. अगर चेस्ट मूवमेंट नहीं है तो इसका मतलब ब्रीदिंग नहीं है. दूसरा, हमें ब्लड सर्कुलेशन चेक करना होता है. देयर इज ए कैरोटिड पल्स. नेक रीजन में ये कैरोटिड पल्स होती है. जो हमारा ब्रीदिंग पाइप होता है उसके साइड में एक ग्रूव बनता है. उस ग्रूव में अगर आप फिंगर्स को पुश करेंगे तो वहां पे आपको पल्स फील होगा. और विक्टिम का अगर पल्स वहां पे नहीं है तो इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो चुका है. और अगर ब्लड सर्कुलेशन भी बंद हो चुका है और ब्रीदिंग भी नहीं है, देन यू विल इनिशिएट द CPR विच इज लाइफ सेविंग टेक्निक, जो आपने अदर सेशन में कवर किया होगा, आई एम श्योर. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग मच टाइम इनटू दिस. लाइफ सेविंग टेक्निक्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस 2 सेशंस में से. So it is very important to assess the victim after checking the scene safety. After assessing, if you feel that victim is not responsive, then you need to initiate the CPR. CPR is life-saving technique which is very effective to make the clinically died employee to the normal situation. So we are not going much into these details, but you need to take this sequence in case of any road accidents. Then electrical accidents. इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स की सिविरिटी को समझने के लिए हमें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्या कैसे करंट लगता है. आई एम डायरेक्टली टेकिंग यू टू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या है इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर. अब वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हम कई तरीके से जनरेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके, लेकिन अल्टीमेट जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ जनरेटिंग स्टेशन, इट कैन बी एनी डीजल बेस्ड जनरेटर और गैस बेस्ड जनरेटर दीज डेज. तो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ पावर होना चाहिए जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा किसी कंडक्टर में. जो ये मूवमेंट होता है ये क्लोज्ड सर्किट में होता है. अगर इस क्लोज्ड सर्किट में इफ सम पर्सन और सम ह्यूमन बिकम पार्ट ऑफ दिस सर्किट, दैट सिचुएशन इज नोन एज इलेक्ट्रिकल शॉक, और उसको हम आम भाषा में बोल देते हैं करंट लगना. अब करंट लगने की सिवियरिटी को अगर हमने समझना है कि हमारी बॉडी कितना करंट बियर कर सकती है, तो करंट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, करंट के लेवल के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी पे उसका अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है. 1 मिली एम्पियर इज जस्ट ए फेंट फिंगल, एक टिंगलिंग इफेक्ट होगा. 5 मिली एम्पियर का अगर करंट है तो उसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगेगा आपको, पेनफुल नहीं होगा, बट इट कैन बी कंज्यूम्ड इन ए बॉडी. ठीक है, वो बियर कर सकते हैं हम. 6 to 25 milliampere is such a current which gives painful shock, और इसमें इतना पेनफुल शॉक हो सकता है कि मसल कंट्रोल लॉस हो सकता है अगर इसकी इंटेंसिटी या एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है तो. और सेम 9 to 30 मिली एम्पियर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस है करंट के लेवल्स में.
तो जितना करंट का लेवल बढ़ता जाएगा उसी तरीके से उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता जाएगा. The longer the exposure, the increased danger of shock to the victim. और इलेक्ट्रिकल शॉक से अगर ज्यादा एक्सपोजर हो जाता है तो इट कैन लीड टू फेटल इंसिडेंट्स ऑल्सो. और उस केस में भी यही है कि अगर फेटल हो जाता है तो वी नीड टू इनिशिएट द CPR. इलेक्ट्रिकल बर्न्स के केस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या करना है हमें. सबसे पहला हमारा जो प्रायोरिटी होगा, विक्टिम को उस सर्किट से अलग करना है. और उस सर्किट से अलग हमें इस तरीके से करना है कि वी शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ दैट सर्किट. अदरवाइज क्या होगा कि आप किसी विक्टिम को बचाने जा रहे हैं और आप खुद इलेक्ट्रिकल शॉक में आ जाएंगे. तो किसी भी नॉन कंडक्टिव मटेरियल का यूज करके, और आजकल तो इसके लिए एक सिंथेटिक रोड्स भी आती हैं यू शेप की, जिसको यूज किया जा सकता है इन केस इफ समबडी इज exposed to electrical shock. Then that U shape synthetic stick can be used to detach the person from the electrical shock area. जो भी लाइव पार्ट है उससे अलग हम कर सकते हैं. और ये करते हुए आपको बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी मटेरियल से आप उसको डिटैच कर रहे हैं विक्टिम को, वो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए. मेटल का हमें यूज नहीं करना है. और इलेक्ट्रिकल बर्न के केस में हमने डिस्कस किया अभी, ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल बर्न सिचुएशन it should not water should not be used if the electrical burn is of second or third degree. अगर superficial level पे है, upper skin पे है, यानी कि first degree burn है, तब आप यूज कर सकते हैं. अदरवाइज सेकंड और थर्ड डिग्री के बर्न के 90% चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक में. तब आपको पानी का यूज नहीं करना है, एंड इट शुड बी कवर्ड बाय क्लीन क्लॉथ, एंड देन यू विल टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल as soon as possible. So these were some of the possible emergencies which we have covered in this session. If I summarize, we have covered fire, burn injury, different road accident situations, electrical situation, earthquake. So कुछ कॉमन इमरजेंसीज को हमने डिस्कस किया है. बट अगर मैं आपको एक कॉमन इसमें प्रिकॉशंस बताऊं, तो कोई भी इमरजेंसी को परफेक्टली रिस्पॉन्स करने के लिए हमें उस इमरजेंसी की पूरी नॉलेज होना जरूरी है. और नॉलेज हम नॉर्मल टाइम पीरियड में ले सकते हैं. तो आपको इस सेशन से कुछ ट्रिगर मिले होंगे, कुछ इंफॉर्मेशन आपको और जानने को मिलेगा इफ यू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ दीज टॉपिक्स व्हिच वी हैव टच्ड अपॉन. बट अगर इन चीजों को भी आपने अच्छे से समझ लिया, और इमरजेंसी के टाइम पे अगर इसमें से कोई एक भी सिचुएशन आपको उस टाइम पे काम आ गई, दिस सेशन विल बी ऑफ वेरी यूजफुल to deal with any such emergency situation. So now open to the question, if you have any comments in the session. So we have completed the session. If you have any comments, any input, so if there are questions related to the topics, you can post in the chat box now. Saying you can please type it in the chat box. Okay. So if there are no questions, we can close the session. I'll request Pooja to take over the session. Yeah, Mohan, you want to say something first? Yes, I would just like to thank. It was a very interactive session, so thanks a lot, sir. And over to you, Pooja ma'am. I would like to give you the closing remarks as well. So please carry on. Yeah, thank you. I would like to say this first of all to Manisha. Very good presentation, Manisha. It was really interactive, and it reinforced a lot of concepts to me also. And I hope all the participants also learned a lot.
And my humble plea to all the participants would be that if they want on any of their organizations or in any of their states to have this session, this community outreach program, you can mail it to us. Himani, would you just give the numbers on the chat box and the email ID where they could reach us for similar sessions in their local atmosphere? Yes, ma'am. Sure. About me. Sure. Thank you. Thank you. And I would have an announcement to make. That is, I have shared the feedback link of the training program. So all the participants are requested to kindly fill that feedback form. We'll get your response and feedback from there, so we can incorporate those for the upcoming training programs. And with that, I would place my vote of thanks. So at first and foremost, I would like to thank Major General Manoj Kumar Bindal sir, Executive Director of NIDM, Professor Santosh Kumar, Head of Governance and Inclusive DRR NIDM, and Mr. Nilay Srivastav, DRLL Lead of IDEA. So thanks to them. I thank them in their absence as they could not join us today. And I would also like to thank the eminent speakers, Mr. Manish Kumar, Dr. Nishant, and Sri Aditya Singh for their excellent presentations and demonstrations throughout. I would also extend my thanks to the participants who have actively participated throughout, and they have been interacting throughout. So there's no loss of interest, I can say. And lastly, I would like to thank the training coordinator from IDEA team, Ms. Pooja Saxena, and her team, Ms. Himani as well, and the NIDM IT team as well. So with that, I would like to end today's training program. It has been a wonderful experience. So I once again thank each and everyone. And with that, I would end today's training program. Thank you all.